Good morning, everyone. Today we are going to start with the new chapter Kings and Chronicles, the Mughal court, 16th and 17th centuries. In this, we are going to study about the evidences which were written in the forms of chronicles, and we are going to study about the Mughals by studying these all chronicles. The rulers of the Mughal Empire, they saw themselves as appointed by divine will. Here, divine will means will of God to rule over a large and heterogeneous population. They thought that they have been appointed by the God to rule over such a large and heterogeneous population. Heterogeneous means diverse population where different religion, with different culture, different languages people are living. So although this grand vision was often circumcised by the political circumstances, otherwise what do you think that why these people have came to our country? Not कि God has came into their just they got a dream that they have to rule over India, but some political circumstances forced them, or we can say that led to their entry into India, and it remained very important also. One way of transmitting this vision was through the writing of dynastic histories. So, one way through which they were very important, they make themselves very important by writing the history of their dynastic history. Means they have written dynastic history, means all the dynasties from Babur to Bahadur Shah Zafar. So, all dynastic histories they get it written. So, that is most important, which shows the importance of these Mughals. And Mughal kings commissioned court historians to write accounts. And to whom they have appointed? They have appointed the courtiers, that is the court poets, court historians, those who were writing the histories of their particular time. And these accounts recorded the events of the emperor's time. और ये सारे क्या करते थे? accounts उस समय के उस emperor के time के सारे record करते थे. record करने का मतलब ये नहीं कि they were having some recorder, but they were writing everything. In addition, their writers collected vast amounts of information from the regions of the subcontinent to help the rulers govern their domain also. And these historians were very helpful to the emperor also, because they were bringing the information from the regions of his subcontinent where that ruler was ruling, and that was helping that ruler to govern efficiently over his territories. And modern historians writing English have termed this genre of text chronicles. और आजकल के जो historians हैं उन्होंने इस written accounts को क्या नाम दिया है? The term this genre means that style or category. फाइन. और इस तरह के कैटेगरी के जो टेस्ट है उसको मॉडर्न हिस्टोरियंस ने नेम दिया है क्रॉनिकल्स का. एज दे प्रेजेंट अ कॉन्टिन्यूस क्रोनोलॉजिकल मीन्स व्हेन सीक्वेंस में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. सीक्वेंस में मीन्स लाइक फर्स्ट इज लाइफ, देन हिज गवर्नेंस, मतलब पूरी सीक्वेंस में सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी वार्ड्स, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, एवरीथिंग सीक्वेंस में जब हमें ये सब कुछ पता चलता है तो उसको हम क्रॉनिकल्स कहते हैं. एंड क्रॉनिकल्स आर इंडिस्पेंसिबल सोर्स फॉर एनी स्कॉलर विशिंग टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ द मुगल. सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसके बिना कोई भी हिस्टोरियन जो है वो हिस्ट्री नहीं लिख पाता. एट वन लेवल दे वर अ रेस्पोसिटरी ऑफ द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द मुगल स्टेट्स. वी कैन से दैट कि ये हिस्टोरियन जो है वो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे उस समय में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को लिखने के लिए ऑफ द मुगल स्टेट. पेन्स टेकिंगली उन्होंने बहुत ज़्यादा पेन लेकर, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके दे कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड the history of that particular period in different periods. And at the same time these texts were intended as conveyor of meaning that the Mughal rulers sought to impose on their domain. और even वो लोग एक conveyor भी, एक कह लो कि messenger also between the ruler and between the people, those who were living in that particular empire. So they were conveying the messages of the Mughal emperor to the people also. They therefore give us a glimpse into how imperial ideologies were created and disseminated. And this chapter will look at the working of these rich and fascinating dimensions of the Mughal Empire. So now let's see that how the Mughals were running their empire and how was their empire. So name Mughal derives from the word Mongol. Today the term evokes का मतलब होता है bring a recall या फिर give an example. Maybe today this term Mongol, it gives an example of the grandeur of an empire. Grandeur means glory, means जिसको हम हिंदी में शान भी कहते हैं. Fine. Grandeur of an empire कि this it was not the name the rulers of the dynasty chose for themselves. लेकिन ये जो Mongol name था, Mughals name they derive from the word Mongols. Mongols were their
दे वर डिसेंडेंट्स लाइक मदर और फादर की साइड से दो ट्राइब्स होती हैं ना, सो मंगोल्स वर फ्रॉम द मदर साइड. फाइन. So today the term evokes the grandeur of an empire, and it was not the name which the rulers of the dynasty chose for themselves. ये उन्होंने मुगल्स ने खुद चूज़ नहीं किया था अपने लिए. They referred to themselves as Timurids. They wanted to be, अपने आप को वो तिमुर कहलाते थे. तिमुर के वंशज, डिसेंडेंट होते हैं वंशज, मीन्स उन्हीं के वंश चलता आ रहा आगे. सो वो अपने आप को तिमुरिड कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे. तिमुरिड के डिसेंडेंट मतलब तिमुरिड के वंशज, उनके आगे का वंश कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे. ऑफ द टर्किश रूलर तिमुर ऑन द पैटर्नल साइड. पैटर्नल साइड मतलब फादर की साइड से वो तिमुरिड्स थे और मदर की साइड से वो मंगोल्स थे. बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर वॉज रिलेटेड टू गेंगीज खान फ्रॉम हिज मदर साइड. फाइन. सो बाबर द मुगल ruler was related to Genghis Khan. Related to Genghis Khan means Genghis Khan was one of the Mongol ruler, and he was from his mother's side, so he spoke Turkish. That is why Babur was related to means उसके ज़्यादा रिलेशन गेंगीज खान के साथ रहे जो मंगोल था मदर की साइड के रिलेशन से. सो दैट इज़ वाई ही वॉज ऑल्सो स्पीकिंग टर्किश एंड रेफर्ड डेरिसिवली टू द मंगोल्स एज बारबेरिक होर्डर. डेरिसिवली का मतलब बहुत ही मजाक में, जिसको हम जैसे हम किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, तो उसने तर्किश मतलब जो उसके पेरेंट के his mother side, and he spoke Turkish and referred derisively to the Mongols as barbaric hordes. और उसने अपने जो मंगोल्स हैं उसको उसने क्या नाम दिया है? He spoke Turkish and referred derisively to the Mongols as barbaric hordes. और उसने मंगोल्स को क्या बोला है कि they are barbaric hordes. Barbaric hordes means uncivilized, uncultured लोगों की भीड़, means the crowd of a uncultured people. So he referred derisively to the मंगोल्स को उसने क्या बोला है? मजाक करते हुए. फाइन. डेरिसिवली का मतलब होता है जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं और उसको कोई ऐसा नाम देते हैं. सो ही हैज़ गिवन मंगोल्स द नेम ऑफ बारबेरिक होर्ड्स, दैट इज अनसिविलाइज्ड crowd. During the 16th century, Europeans used the term Mughals to describe the Indian rulers of this branch of the family. So 17th century में यूरोपियंस ने मुगल नाम दिया इस डायनेस्टी के रूलर्स को, इंडियन रूलर्स को, जो उस समय में इस हमारी कंट्री में रूल कर गए थे उनसे पहले, ब्रिटिशर्स से पहले. सो ओवर द पास्ट सेंचुरी द वर्ड हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड. इवन द नेम मोगली, आपको पता है मोगली एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि रुडयार्ड किपलिंग की बुक जंगल बुक का एक कैरेक्टर है. सो वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये मोगली वर्ड भी इन्हीं मंगोल वर्ड से ही इन ब्रिटिशर्स ने लिया होगा, क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग वॉज द one of the European. So the empire was carved out of a number of regional states of India through conquest and political alliance between the Mughals. So ये एम्पायर, जो इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने जो मुगल्स ने खड़ा किया है, वो उसने बहुत सारी जीत हासिल करके वॉर्स में और बहुत सारे इंडियन रूलर्स के साथ उस समय के जो लोकल चीफ्टेंस थे, चीफ्टेंस मतलब लोकल जो उस समय के किंग्स थे उस पर्टिकुलर टेरिटरीज़ के, उनके साथ अपना अलायंस बनाकर मतलब गठजोड़ करके उनके साथ मिलकर उनको शेल्टर देकर उन्होंने ये सारा एम्पायर जो था इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया. द फाउंडर ऑफ द एम्पायर वॉज ज़हीरुद्दीन बाबर, हु वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर. ही वॉज ड्रिवन फ्रॉम हिज सेंट्रल एशियन होमलैंड वेयर ही वॉज बिलोंगिंग टू फरगाना in Afghanistan, and he was thrown from their throne. We can say that he was sent by winning by Uzbekis. फाइन. उज़्बेक्स एक डायनेस्टी थी जिन्होंने इसको हराकर और इसको अपने होमलैंड से बाहर भेज दिया था. एंड ही फर्स्ट एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एट काबुल इन अफगानिस्तान, एंड देन इन 1526 ही पुश्ड फर्दर इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जैसे ही उन्होंने अपने आप को काबुल में एस्टैब्लिश किया, तब उज़्बेक्स ने फिर से काबुल से भी इनको पुश कर दिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर. और यहाँ पर इन्होंने किस सर्च में आए थे ये सब कॉन्टिनेंट की तरफ? इन सर्च ऑफ टेरिटरी एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ हिज क्लैन. मेंबर्स ऑफ हिज क्लैन मतलब अपने ट्राइब के लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए उनको टेरिटरीज़ की ज़रूरत थी और रिसोर्सेज की ज़रूरत थी. एंड इट्स सक्सेसर्स Nasiruddin Humayun, his son. Successor means who succeeded him after his death, and his son Nasiruddin Humayun, who was the second Mughal ruler. He ruled from 1530 to 1540, 10 years first, and 1555 to 56 later on. He expanded the frontiers of the empire. उसने और ज़्यादा एम्पायर को बढ़ाया, बट लॉस्ट इट टू द अफगान लीडर. लेकिन वो अफगान रूलर जो था शेर शाह सूरी, उससे हार गए थे और जिसने उनको देश से बाहर निकाल दिया था, उनकी टेरिटरी से बाहर निकाल दिया था. बट हुमायूं टुक रिफ्यूज इन द कोर्ट ऑफ सैफेविड रूलर ऑफ ईरान. लेकिन जो ये हुमायूं थे, इन्होंने किसके कोर्ट में शेल्टर लिया?
Safavid rulers in Iran. And in 1955, Humayun again prepared himself and defeated the Surs. Surs means Sher Shah Suris, but he died when he occupied again Indian subcontinent, but he died a year later only when he was ruling, when he fallen down from the stairs of his library. And many considered Jalaluddin Akbar, because that time Jalaluddin Akbar, the son of Humayun, was only 11 years. So on behalf of him, he's one of the, we can say that the well-wisher was ruling on behalf of him till the time he got matured. So the greatest of all the Mughal emperors, the Jalaluddin Akbar, he was not only expanded the empire, मतलब बढ़ाया ही नहीं बल्कि उसको मजबूत भी किया, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर, मेकिंग इट द लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट किंगडम्स ऑफ हिज टाइम. एंड अकबर सक्सीडेड इन एक्सटेंडिंग द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर ऑल्सो टू हिंदकुश माउंटेन्स तक लेकर, एंड चेक द एक्सपेंशनल डिज़ाइंस ऑफ द उज़्बेक्स. और इवन जो उज़्बेक्स जिन्होंने कि बाबर को हराया था उस समय में, उस उज़्बेक्स की जितने भी अटैक वो इनके ऊपर करते थे अकबर के एम्पायर के ऊपर, उस सबको उसने हराता गया. उज़्बेक्स ऑफ तुरान है सेंट्रल एशिया में, और सैफेविड्स जो ईरान के थे उनको भी उसने इंडिया के किसी भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी किसी भी पार्ट के ऊपर उसने उनको अटैक करने नहीं दिया अपने टाइम पर. इतना ज़्यादा उसने मजबूत बना लिया था अपनी सारी आर्मी को और अपने सारे एम्पायर को. एंड अकबर हैड 3 फेयरली एबल सक्सेसर्स इन. अकबर के बाद उनके सक्सेसर्स हुए अकबर सन जहांगीर सन शाहजहां एंड शाहजहां सन औरंगज़ेब. 1707 तक these successors ruled much as their characters varied. लेकिन सबके कैरेक्टर, सबका रूलिंग स्टाइल वॉज डिफरेंट. अंडर देम द टेरिटोरियल एक्सपेंशन कॉन्टिन्यूड. टेरिटोरियल एक्सपेंशन मतलब टेरिटरीज वो अपनी एक्सपेंड करते गए, बट द पेस ऑफ एक्सपेंडिंग एंड ग्रोथ ऑफ एक्सपेंडिंग दोज टेरिटरीज वॉज वेरी स्लो of these successes as compared to the Akbar. The 3 rulers maintained and consolidated the various instruments of गवर्नेंस. ये तीनों रूलर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया और कंसोलिडेट किया वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस. मतलब अपनी गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज़ को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से और अच्छी तरह से एफिशिएंट बनाया अपनी सारी पॉलिसीज़ को. एंड ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरीज द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एन इंपीरियल स्ट्रक्चर वर क्रिएटेड. उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाई अपने इंपीरियल स्ट्रक्चर की. दीज इंक्लूडेड इफेक्टिव मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड्स को और इफेक्टिव बनाया और टैक्सेशन के मेथड्स को भी बहुत इफेक्टिव बनाया, जो कि आप लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी यू हैव लर्नड. एंड विजिबल सेंटर ऑफ मुगल पावर वाज द कोर्ट. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो सेंटर था मुगल्स की पावर देखने का, दैट वाज इफ़ यू विल सी द कंडक्शन, कि हाउ दे वर कंडक्टिंग देयर कोर्ट. एंड हेयर पॉलिटिकल अलायंसेस मतलब समटाइम्स दे वर मेकिंग एन अलायंस and relationships were forced. Here forced means fraud. Fine, fraud या fake. Here political alliances and relationships were forged, status and hierarchies defined. ठीक है. एंड पॉलिटिकल सिस्टम डिवाइज्ड बाय द मुगल्स वाज बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री पावर. और जो पॉलिटिकल सिस्टम था जो मुगल्स ने बनाया था, इट वाज बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री पावर आल्सो एंड कॉन्शियस पॉलिसी टू अकोमोडेट द डिफरेंट ट्रेडिशंस दे एनकाउंटर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने अपने सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा उन्होंने डेवलप किया अपने उसमें, जिसमें कि उनकी जो उनका एम्पायर था वो कॉम्बिनेशन था उनकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर का, और साथ में उनकी ऐसी पॉलिसीज़ जिसमें उन्होंने इंडिया के सारे डिफरेंसेस को, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, सबको उस सब कॉन्टिनेंट के अकोमोडेट कर लिया. एंड आफ्टर 1707 फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगज़ेब द पावर ऑफ द डायनेस्टी डिमिनिश. लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होगी उसके बाद में मुगल पावर स्टार्टेड decreasing. In place of the vast apparatus of empire control from Delhi, Agra, Lahore, the different capital cities, the regional powers acquired greater autonomy. अब जहाँ पर जब ये औरंगज़ेब तक का रूल था तब तक दिल्ली, आगरा, लाहौर और डिफरेंट कैपिटल सिटीज़ में इनकी रीजनल पावर्स थी. अब धीरे धीरे यही सारे औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो बहादुर शाह जफ़र थे उतने पावरफुल रूलर नहीं माने गए हैं, और उनके टाइम पर, बहादुर जफ़र के टाइम पर, ये सारे डिफरेंट रीजन्स में सारे रूलर्स ने अपनी अपनी टेरिटरीज़ को इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू कर दिया. येट सिम्बॉलिकली द प्रेस्टीज ऑफ द मुगल रूलर डिड नॉट लूज इट्स ऑरा. ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि मुगल रूलर्स का जो पूरा ऑरा था वो उस समय में फिनिश हो चुका था. फिर भी 1857 में लास्ट सियोन ऑफ दिस डायनेस्टी बहादुर शाह जफ़र वॉज ओवरथ्रोन बाय द ब्रिटिश. फिर भी मुगल एम्पायर चलता रहा जब तक कि मुगल्स के लास्ट रूलर बहादुर शाह जफ़र को ब्रिटिशर्स ने हराकर हटा नहीं दिया उसकी गद्दी से. सो नाउ लेट्स सी दैट कैसे ये सारे क्रॉनिकल जिससे हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, हाउ दीज वर प्रोड्यूस्ड.
So when we were talking about this, so chronicles commissioned by the Mughal emperor are an important source for studying. Commission मतलब जो बनवाए इनके मुगल एम्परर्स के द्वारा एक important source है for studying the empire and its courts, and they were written in order to project a vision of an enlightened kingdom. और ये क्यों लिखे गए थे? ये दिखा रहे थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे किसको? एक एनलाइटेंड किंगडम. एनलाइटेंड क्या होता है? बड़ा ही जागरूक जो किंगडम थी उस समय की, बहुत ही ज़्यादा एनलाइटेंड किंगडम, जिसमें हम कह लें कि द रियल किंगडम ऑफ दैट टाइम टू ऑल दोज हु केम अंडर द अम्ब्रेला. सिर्फ इन्होंने अपने ही किंगडम को एम्पायर नहीं, अपने एम्पायर को नहीं बढ़ाया, बल्कि अपने एम्पायर के अंडर जो इंडियन रूलर्स भी उनके शेल्टर में आए उनको भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने आगे डिवेलप किया है. एट द सेम टाइम दे वर मेंट टू कन्वे टू दोज हु रेसिस्टेड द रूल ऑफ द मुगल्स दैट ऑल रेसिस्टेंस वॉज डेस्टिन्ड टू फॉल. और इतना ही नहीं किया, जो इंडियन रूलर्स उनको रेसिस्ट करते थे, उनको अपोज करते थे, उनकी भी रेसिस्टेंस को, उनकी अपोजिशन को भी उन्होंने, किस्मत थी कि उन्होंने उसको भी फेल करते चले गए वो. एंड ऑल्सो द रूलर्स वांटेड टू इंश्योर दैट देयर वाज एन अकाउंट ऑफ देयर रूल फॉर पोस्टेरिटी. और उन्होंने ये भी बताया कि वो यहाँ पे रूल करके किसी को भी डोमिनेट करने नहीं आए हैं, किसी को भी वी कैन से दैट कि वो किसी को भी डोमिनेट करके किसी को तंग करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर. एंड ऑथर्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स वर इनवेरिएबली कोटियर्स. और जितने भी ऑथर्स हैं ये मुगल क्रॉनिकल्स के, वो सारे के सारे कोटियर्स थे, मतलब दरबार में काम करने वाले, राजा के कोर्ट में काम करने वाले. एंड हिस्टोरियंस दे रोट फोकस ऑन इवेंट्स, वॉर्स एंड वॉर्स. जो उन्होंने जिसके बारे में लिखा है हिस्टोरियंस ने, जिसने सबसे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने जिन इवेंट्स पे, वो है रूलर के बारे में, रूलर्स की फैमिली, उनके कोर्ट, उनके नोबल्स, वॉर्स, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स. ठीक है. एंड द टाइटल्स सच एज अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा. आलमगीरनामा इज़ द biography of Aurangzeb. That is the story of Akbar, Shahjahan and Alamgir is the title of Mughal ruler Aurangzeb. Suggest that in the eyes of their authors, the history of the empire and court was synonymous with that of the emperor. उनका ये कहना है कि ये जितने authors ने ये सारी biographies लिखी हैं, ये history लिखी है इस empire की, उन एम्पायर वालों के आँखों, मतलब उनकी नज़र में ये जो एम्पायर था और एम्पायर का कोर्ट जो था, वो जो भी उनके बारे में लिखते थे वो बिल्कुल सिमिलर था उनके एम्परर के लिए. जैसे वो अपने एम्परर के बारे में हिस्ट्री लिखी है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने हिस्ट्री लिखी है अपने उनके एम्पायर और उनके कोर्ट की. फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन. सो मुगल कोर्ट्स, नाउ क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन अंडर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली. इट फ्लोरिस्ड. मुगल कोर्ट ने क्रॉनिकल्स को सबसे पहले लिखना शुरू किया था पर्शियन लैंग्वेज में. वाई? बिकॉज बिफोर मुगल्स व्हेन द सुल्तान्स वर रूलिंग, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर रूलिंग, सो दैट टाइम दिस पर्शियन लैंग्वेज वॉज फ्लोरिस्ड. अंडर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इट फ्लोरिस्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, क्योंकि उस समय में टर्किश टर्की सुल्तान्स ने इस लैंग्वेज को अपनी कोर्ट की लैंग्वेज बनाया हुआ था. एंड इवन फॉर द लिटरेचर राइटिंग अलॉन्ग विद नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस. सिर्फ यही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस वर आल्सो यूज्ड इन हिज कोर्ट, लाइक हिंदवी जिसको हम कहते हैं हिंदी, एंड इवन सम रीजनल लैंग्वेजेस आल्सो. एज द मुगल्स वर चंगदात कहते हैं चंगेज़ खान को. तर्क्स बाय ओरिजिन. तर्क्स मतलब टर्की थे ये ओरिजिन में, वैसे ओरिजिन मतलब टर्किश ओरिजिन के थे वो अपनी मदर की साइड से. मदर की साइड से उनकी जो ओरिजिन थी, मतलब उनकी मदर टर्किश थी एंड टर्किश वॉज देयर मदर टंग. तो वी कैन से दैट टर्किश वॉज देयर मदर टंग. फाइन. एंड द फर्स्ट रूलर बाबर, ही रोट हिज होल पोएट्री एंड हिज ऑल मेमोयर्स, जो भी उसने अपनी हिस्ट्री लिखी है, that was in Turki language only. And it was Akbar who consciously set out to make Persian the leading language. अकबर ने बनाया पर्शियन को leading language of the Mughal court. Cultural and intellectual contact with Iran as well as regular streams of Iranian and Central Asian migrants seeking positions at the Mughal court might have motivated the emperor to adopt the language. अब पर्शियन लैंग्वेज कैसे बन गई? क्योंकि टर्किश वॉज देयर मदर लैंग्वेज. देन वाई हाउ दे मेक द पर्शियन? Akbar had made Persian as the main language because in his court the different स्ट्रीम से पीपल थे, इरानियन आल्सो, सेंट्रल एशियन आल्सो, एंड दीज पीपल वर स्पीकिंग इन पर्शियन लैंग्वेज. सो दैट इज़ वाई ही अडॉप्टेड दैट पर्शियन ओनली एज द लैंग्वेज ऑफ हिज कोर्ट, कन्फरिंग पावर एंड प्रेस्टीज ऑन दोज हु हैड अ कमांड ऑफ इट. और उसने कन्फरिंग व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इट मीन्स दैट कि कन्फरिंग मीन्स टाइटल्स, गिविंग टाइटल्स टू द पीपल, दोज हु वर डूइंग समथिंग extraordinary. So Persian was elevated to a language of the empire. Elevated मतलब rise हुई as a language of the empire, and even the titles which were given, power, prestige on those who had command of it,
everyone was speaking the Persian language only, and it was spoken by the king, the royal household, and elites of the court all. Further, it became the language of the administration at all levels, so that accounts, clerks, and other functionaries also learn it. And even when Persian was not directly used, its vocabulary and idioms heavily influenced the language of the official records. Even when Persian was, they said, not directly used, but जो vocabulary थी उस समय की and the idioms you know that मुहावरे, इट्स हैविली इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑल्सो. ये सारी चीज़ों ने उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था इन राजस्थान एंड मराठी, राजस्थानी एंड मराठी एंड इवन तमिल लैंग्वेज में. वो कहते हैं कि जब पर्शियन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी उस समय में वोकेबलरी और इडियम्स में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कौन सी लैंग्वेजेस का, राजस्थानी, मराठी एंड Tamil. And since the people using Persian in the 16th and 17th century came from many different regions of the subcontinent and spoke other Indian languages also, so Persian too became Indianized. So उस समय में Persian भी आम बोली जाने लगी लोगों के द्वारा, इंडियन लोगों के द्वारा. So इसीलिए पर्शियन भी इंडियनाइज हो गए बाय ऑब्जर्विंग लोकल इडियम्स, और उस पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने हमारे इंडियन लोकल इडियम्स को भी यूज़ करना शुरू कर दिया. एंड न्यू लैंग्वेज उर्दू स्प्रैंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पर्शियन विद हिंदवी, और ये पर्शियन और हिंदी को मिलाकर बनी है उर्दू लैंग्वेज, जो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बोली जाती है. उर्दू उनकी मेन लैंग्वेज है. सो ये उर्दू बनी है पर्शियन और हिंदी, हिंदी भी कहते थे वो, लेकिन उसको हिंदी कहते हैं. सो मुगल क्रॉनिकल्स सच एज द अकबरनामा वर रिटन इन पर्शियन एंड अदर्स लाइक बाबर्स मेमोरियल्स वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम द टर्किश इनटू द पर्शियन. बाबरनामा, बाबर ने अपने जो मेमोरियल्स लिखे हैं वो उसने तर्किश लैंग्वेज में लिखे, लेकिन बाद में उनको तर्किश से पर्शियन में ट्रांसलेट कर लिया गया था. ट्रांसलेशंस ऑफ संस्कृत टेक्स्ट सच एस महाभारता एंड रामायणा इनटू पर्शियन वर कमीशन बाय मुगल एम्परर्स. इवन रामायण और महाभारता को भी इन मुगल एम्परर्स ने अपनी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया. एंड महाभारता वॉज द ट्रांसलेटेड एज रजमनामा, बुक ऑफ wars. So today we will be doing till here only. So tomorrow we will be doing the next topic. Till then, goodbye.